आज के समय में जब दुनिया हेल्थ केयर की अहमियत को गहराई से समझ रही है, तब पैरामेडिकल सेक्टर एक मजबूत और स्थायी करियर विकल्प बनकर उभरा है। ये क्षेत्र उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है जो मेडिकल फील्ड में काम करना चाहते हैं। पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स डॉक्टरों के साथ मिलकर मरीज की देखभाल, डायग्नोसिस, मेडिकल सपोर्ट और इमरजेंसी सेवाएं देने में अहम भूमिका निभाते हैं। भारत में ऐसे ही फ्यूचर रेडी प्रोफेशनल्स को तैयार करने का काम भारतीय विद्यापीठ, डीम टू बी यूनिवर्सिटी पुणे जैसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान कर रहे हैं, जहां एजुकेशन को इंडस्ट्री, रिसर्च और इनोवेशन से जोड़कर स्टूडेंट्स को दिशा प्रदान की जाती है। Any hospital to flourish, it is not only the doctors, but a very efficient and capable paramedical staff needs to be there. For every doctor, the ratio has to say that there has to be a 4 well-certified, qualified paramedical staff. And I personally think so. The biggest advantage for these courses is 100% job placement with a decent salary. With so much of youth in India, if this particular spectrum is well exposed, it will give a lot of job opportunities and career enhancement to young science students. ये फील्ड मेडिकल साइंस का ही एक हिस्सा है, जिसमें ऐसे कोर्स शामिल होते हैं जो छात्रों को टेक्निकल, डायग्नोस्टिक, थेराप्यूटिक और इमरजेंसी सेवाओं के लिए प्रशिक्षित करते हैं, जैसे लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजिस्ट, ओटी टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, एम्बुलेंस पैरामेडिक, डायलिसिस टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट, कार्डियक केयर टेक्नीशियन और भी बहुत कुछ। There was no formalized training which was there in our country, but I am made to understand that the government of India and especially the state government has taken a very big initiative to start skill development courses under a separate head under the Ministry of Health, and I am sure this type of innovative ideas will make these courses very well known to the population, and lot of youngsters would get job opportunities to build up their career. आज का युग विज्ञान और शोध का है और इस बदलाव की अगुवाई कर रहा है बायोटेक्नोलॉजी का क्षेत्र। बायोटेक्नोलॉजी यानी बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का संगम। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां जीव विज्ञान की मदद से नई दवाइयां, बीमारियों का इलाज, पर्यावरणीय समाधान और खाद्य सुरक्षा पर काम किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कृषि, फार्मास्यूटिकल्स और पर्यावरण संरक्षण तक में हो रहा है। आने वाले वर्षों में ये फील्ड बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगी। Vaccine development, quality control in pharma industry, even for research, these are important aspects. Another niche area that we are catering to is the area of bioinformatics. This is also a very upcoming area where you will apply computational science to your biological knowledge. So if you have sound biological knowledge, you can make use of computational skills for drug delivery, for designing drugs. So these are the niche areas where students are finding employment. यही कारण है कि आज यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स को थ्योरी के साथ साथ स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरीज और रिसर्च एक्सपोजर मिलता है। एनिमल टिश्यू कल्चर लैब, प्लांट टिश्यू कल्चर लैब और एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी लैब जैसी एडवांस्ड फैसिलिटीज स्टूडेंट्स को बेसिक से लेकर एडवांस्ड लेवल तक ट्रेन करती हैं। Like all the programs in health sciences, that is medicine, dentistry, Ayurveda, homeopathy, nursing, pharmacy, and the campus is a buzz with educational and cultural activities. We are contributing to our Honorable Prime Minister's vision of Vikasit Bharat and not being just the job seekers but job givers. We also have dedicated hospitals for teaching and training of the health science graduates, and a total bed capacity will be 2,500 with all state of art modern diagnostic and therapeutic facilities. अगर हम मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो आज स्टूडेंट्स डायग्नोस्टिक्स, वैक्सीन्स, फार्मा क्वालिटी कंट्रोल और एडवांस्ड रिसर्च जैसे क्षेत्रों में ट्रेंड हो रहे हैं। कोविड-19 पेंडेमिक ने हमें ये सिखाया कि वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स और डायग्नोस्टिक्स सब की जड़ माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में ही है। Here we are concentrating on wolf gut microbiome
and the interaction of wolf and feral dogs, which that's the main aim of our study. In this study, we try to find out the gut microbiome, and then through that tool, we are trying to solve the human-animal conflict. माइक्रोबायोलॉजी को कहा जाता है बायोटेक्नोलॉजी की बैकबोन। फूड, वाटर, सॉइल, एग्रीकल्चर, हेल्थ और एनवायरनमेंट, हर सेक्टर में माइक्रोबायोलॉजी का रोल वाइटल है। यानी कह सकते हैं कि मानव जीवन को बेहतर बनाने वाले इस क्षेत्र में करियर के बेहतर अवसर मौजूद हैं। Microbiology is the base of biotechnology because microbiology is involved in every aspect of life, like food microbiology, water microbiology, soil microbiology, agriculture microbiology, health, vaccine, antibiotics, environment. So you name any sector, microbiology is involved. And recently the pandemic that we have faced, COVID-19, the vaccines they are developed, that is also based on microbial technology and the base is microbiology. आज की सबसे तेजी से बढ़ती हुई फील्ड है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायोलॉजी के साथ प्रोग्रामिंग स्किल्स के साथ एआई बेस्ड रिसर्च स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम सॉल्वर बनाती है। इंडस्ट्री अब ऐसे प्रोफेशनल्स चाहती है जो सिर्फ एक डोमेन में नहीं बल्कि मल्टीपल डोमेन्स में एक्सपर्टीज रखते हों। We are running very important courses as per the timeline, like the basics of bioinformatics, core bioinformatics, sequence data analysis, omics data visualizations, then molecular modeling, drug designing, machine learning, artificial intelligence, cancer genomics. So we are trying to covering all the aspects and the subjects which the students are requiring as per the this current era. So we'll trying to make the students placement ready. भारतीय विद्यापीठ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी पुणे में मौजूद रिसर्च कल्चर स्टूडेंट्स को पेपर पब्लिश करने, पेटेंट्स फाइल करने और इनोवेशन की दिशा में आगे बढ़ने का मौका देता है। यहाँ से पीएचडी कंप्लीट कर चुके स्टूडेंट्स अब कई नेशनल और इंटरनेशनल रिसर्चेस में अपना योगदान दे रहे हैं। Currently, I am working with prebiotics and probiotics. There are various publications also done by our college based on prebiotics, probiotics, nanotechnology, food biotechnology, and also fermentation technology. Basically, we are trying to enhance the activity of prebiotics and probiotics by combining both of them, and also to enhance the viability of those microorganisms in our gut. प्लांट बायोटेक्नोलॉजी भी फ्यूचर ओरिएंटेड फील्ड है। टिश्यू कल्चर, मेडिसिनल प्लांट्स और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स हैं। एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी आज के समय की सबसे जरूरी फील्ड है। वेस्ट मैनेजमेंट, इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस और सस्टेनेबिलिटी, ये सभी ह्यूमन साइंस का ही हिस्सा हैं और इनके एक्सपर्ट्स की डिमांड आज तेजी से बढ़ी है, जिससे युवाओं के लिए ये फील्ड एक बेहतर करियर बन चुकी है। Tissue culture technique is one of our unique program, and the research area of this at regeneration of the in vitro and especially endangered species and the polyhouse, and we have to put that the primary plant to the outside the lab to land. भारत में बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। बायोटेक्नोलॉजी से पास आउट युवाओं की मांग हर क्षेत्र में बढ़ रही है। बायोटेक्नोलॉजी युवाओं के लिए रोजगार के ढेरों अवसर मुहैया करवा रही है। बड़ी बड़ी कंपनियों में फ्रेशर्स को 4 से 8 लाख सालाना पैकेज मिलता है, जबकि अनुभव के साथ ये 15 से 20 लाख तक पहुंच जाता है। तो अगर आप एक ऐसा करियर चाहते हैं जहां ग्लोबल डिमांड, रिसर्च एक्सपोजर, इनोवेशन और रिस्पेक्ट हो, तो बायोटेक्नोलॉजी न सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए एक परफेक्ट चॉइस है, बल्कि बेहतर भविष्य की गारंटी भी है। और जब ये एजुकेशन भारतीय विद्यापीठ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी पुणे जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मार्गदर्शन में मिले, तो सक्सेस की राह और भी मजबूत हो जाती है। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर।